Thank you so much, sir, for talking to ET now, sir. Just want to understand from you, sir, as you spoke about your theory about more from less for more. So, how this can be beneficial for public at large in healthcare sector, which where there's a lot of requirement to do more and more. Yes, absolutely. In fact, more from less for more is the way. When I say more from less, I mean to say that use less resources to create more performance. And because you are using less resources, you become affordable, ultra affordable. And that means you can reach more and more people. So it is not more from less for more profit, but also for more people. And as I demonstrated in screening, for example, mammography is expensive, but we have a device which you just move around the breast and you know where you have cancer. And just costs 100 rupees per test as against a few thousand rupees. Affordable. We need to detect TB. You require X-ray or sputum test or a culture, which it takes time, quite expensive. No, you just cuff into a phone and the audiometry of the phone is trained by artificial intelligence with cough as a biomarker, and within 10 rupees actually you get to know whether you have TB or not. So these are not just affordable but ultra affordable. Okay, and that is why they will become sort of useful for mass at large. And also you can see accessibility. It is not just affordability. A woman in a village can cough, and the doctor in Pune or Delhi or Mumbai can spot, provided she has access to sort of doing that, because technology, the exponential technology in particular, like artificial intelligence, allows you to basically do that. But sir, there are some challenges. Do you think when we talk about the on the front of innovation going ahead, when tech is enabled in the innovation? Yes, uh, the challenges basically are our limits in terms of our thinking, to be honest. Like for example, you would not have imagined that for hemoglobin you have to take a blood and then send it for sample. Just put your finger and the technology of photoplethysmography actually reads out what your hemoglobin is just for 10 rupees, not for hundreds of rupees. So thinking differently in order to create solutions, all right, find a way by which the costs get reduced and the highest technology is used most affordably in order to make things happen. Yes, सर अब हिंदी के दर्शकों के लिए भी सर आपसे समझना चाहूँगा सर भारत के अभी परिप्रेक्ष्य में देखें तो और आपको 60 साल से ज़्यादा का रिसर्च और अनुसंधान का अनुभव है तो अभी कौन सी आपको ऐसी चुनौतियाँ लगती है जिस पर सरकार का समाज का फोकस होना चाहिए जिससे जो हम विकसित भारत का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और उस विकसित भारत को पूरा किया जाएगा हमारे नौजवानों के द्वारा तो वहाँ पर अगर एफोर्डेबिलिटी पे फोकस किया जाता है अनुसंधान पे फोकस किया जाता है इनोवेशन पे फोकस किया जाता है तो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य हो जाएगा मतलब उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और जो चुनौतियां है वो टेक्नोलॉजी की मदद से इनोवेशन की मदद से निपटी जा सके ये सो आप ऐसा देखिए कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है ये हमारी युवा शक्ति है। और जैसे कि मैंने अभी बताया, ये ऐसे युवा है जो देश के भलाई के लिए टेक्नोलॉजी का कैसा यूज़ करें, केवल खुद धनी बने इसके लिए ऊपर उनका ध्यान नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर अगर डिटेक्ट करना हो तो कोई 100 रुपये में आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। और सर क्या ये कारगर है जो जो टेक्नोलॉजी और आप टेस्ट की बात कर रहे हैं 100 रुपये में अगर ये होता है तो क्या आपने भी सर उसको आजमाया है और ये कारगर है पूरी तरह से पूरी पूरी तरह से आज वो ये 20 देशों में गए हैं, FDA अप्रूव्ड है, 20 देशों में इसका का काम करे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड,
ऐसे फॉर द वर्ड हो गया है। सर, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो काफ़ी सस्ते पर किए जा सकते हैं, जिससे भारत के अंदर बड़ी संख्या में जो मरीज है, महिलाएं हैं, लोग हैं, जिनको फ़ायदा हो सकता है? ऐसे कौन से 3-4 टेस्ट हैं जो बहुत सस्ते हो गए? देखिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन अपने को मेजर करना है ना, एनीमिया के लिए, तो उसके लिए सिर्फ आप अपनी उंगली रखें और वो जो इजी केयर नाम की एक जो शोध लगी है, उससे आपको हीमोग्लोबिन का रीडिंग आ सकता है केवल 10 रुपये में। उसके लिए 100-200 रुपये की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऐसा है, टीबी हो तो टीबी के लिए तो आपको एक्सरे लेना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल लीजिए, उसमें खांसी आप ये करें तो वो कफ एज अ बायो इंडिकेटर बनता है और आपको पता चलता है आपको टीबी है कि नहीं। ये सब जगह अभी इसका यूज़ हो रहा है। तीसरा है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर के लिए भी यहाँ से बायोप्सी लो, वहाँ से बायोप्सी लो, महंगी है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी डिवाइस बनी है जो आप सिर्फ मुंह में घुमाए, आपको पता 100 रुपये में हो सकता है और ये सब जगह फैली है। हमने वो एफेक्स हेल्थ केयर किट बनाया है। एफेक्स हेल्थ केयर किट में 20 मेडिकल टेस्ट, वो ब्लड प्रेशर हो या ईसीजी हो या शुगर हो, ये 20 मेडिकल टेस्ट 10 मिनट में केवल 100 रुपये में होते हैं। एफेक्स हेल्थ केयर, अफोर्डेबल इसकी एक्सेस। क्या जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है और ये बढ़ाने की ये जरूरी, जैसे कि मैंने अभी प्रेजेंटेशन में दिखा है कि गोवा में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है ना। तो सरकार के साथ मिलके भी सर आप काम करेंगे जिससे बहुत बहुत ज़रूरी है। सरकार के जो पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है ना, वहाँ उसका उपयोग करें। इसके लिए हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे कि टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, वॉकहार्ट है, ऐसी कंपनी जो है ना, उनके साथ उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें मिल के हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।